Hello everyone. We have reached the last very interesting and very important topic of this chapter, that is reactions in solutions. Mostly the reactions which are carried out in the laboratories, they occur in the solution form. For that we have to prepare the solution, and we know that solutions they are prepared by dissolving solute in the solvent. Means we should know the concentration of the solution, that how much solute is to be dissolved in how much solvent and how much volume of the solution we have to prepare. So there are different ways to express the concentration of the solution. We are going to start with the expressions, how to express the concentration of the solution. Mass percentage, molarity and mole fraction. These are the different ways by which we can express the concentration of the solution. So one by one we are going to discuss each of them. First is mass percentage. जैसे हमें कई बार कोई solution बनाने के लिए कहा जाता है कि we have to do the solution for which we have to prepare 10% of the solution of given solute. जैसे हमें कहा जाए कि 10% glucose solution use करना है. 10% glucose solution means we have to take 10 gram of solute and 90 gram of solvent to prepare total solution of 100 gram. Total 100 gram solution बनाने के लिए हम 10 ग्राम solute डालें और 90 ग्राम वाटर डालें तो we'll get the 10% solution. ऐसे अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं A एंड B, अगर हमें मास परसेंटेज निकालनी है ऑफ A, मास ऑफ A अपॉन mass of A plus mass of B into 100. In the same way, mass percentage of B, it is mass of B upon mass of A plus mass of B means total mass into 100. अब अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया, मैंने कहा कि अगर हम 10 ग्राम सोल्यूट, 10 ग्राम सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट into 100 कर दें तो what do we get? 10 by 100 into 100, that is 10% of the solution. This is the mass percentage of A. means हमने क्या बना लिया? 10% solution बना लिया. कैसे बनाया? 10 ग्राम सोल्यूट 90 ग्राम सॉल्वेंट में टोटल 100 ml solution बना दी. Now discussing a question based on it. The first question is, a solution is prepared by adding 4 gram solute in 16 gram solvent. Calculate the mass percentage of the solute. So mass percentage of A, क्योंकि हम यहाँ A किसे ले रहे हैं? solute को, और ये क्या है? solvent. तो mass percentage of A निकालने के लिए mass of A, what is the mass of A? It is 4 gram upon mass of solute plus mass of solvent into 100. 4 by 20 into 100, that is 20%. So mass percentage, here the question was calculate the mass percentage of the solute. So the mass percentage of solute is 20%. Discussing the next question also based on mass percentage only, but the difference here is calculate the mass of the solute to be dissolved to prepare 200 gram of 20% solution. Now it is already given to us that the solution is 20% और total volume कितना बनाया हमने? 200 gram solution का बनाया. तो हमें उसमें ये निकालना है कि solute कितना dissolve करेंगे. मान लीजिए हमने लैब असिस्टेंट को बोला कि आप 200 ml solution बना दो जिसकी concentration 20% हो, तो अब वो उससे कैलकुलेट करेंगे कि हम कितना solute कितने solvent में dissolve करें कि वो 20% सॉल्यूशन बन जाए और टोटल वॉल्यूम उस सॉल्यूशन का 200 ग्राम हो. अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, नाउ द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज गिवन टू अस कि 20% सॉल्यूशन है. 20% सॉल्यूशन के लिए मास ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता कि हमें कितना डिसॉल्व करना है, बट हियर द इन द डिनोमिनेटर इट इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस टोटल मास इज गिवन टू अस. So the total mass is 200 gram into 100
इज इक्वल टू 20। अब अगर हमने लैब असिस्टेंट को कहा कि 200 ग्राम सॉल्यूशन बनाना है जिसकी परसेंटेज 20% हो, तो वो मेजर करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे कि हम कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें कि वो टोटल 200 ग्राम बन जाए और उसकी परसेंटेज 20% हो। नाउ हियर ऑन सॉल्विंग इट, 0 0 cancel, 2 will be multiplied here, so this comes out to be 40 ग्राम। इसका मतलब अब यहाँ से उन्हें ये पता चलेगा कि 40 ग्राम सॉल्यूट को 160 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, ये सॉल्यूट एंड 160 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, तब 200 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा। आपको भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट which is required to prepare 200 ग्राम of 20% solution। 20% solution 200 ग्राम बनाने के लिए कितना सोल्यूट और सॉल्वेंट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो हमने इसी फॉर्मूला से हम ये निकाल लेंगे कि सोल्यूट कितना है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन हमें गिवन है, उसमें से सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना सॉल्वेंट उसमें ऐड करना है टू मेक टोटल 200 gram of the solution। Coming to the next one, that is molarity। Molarity is defined as number of moles of solute dissolved per liter of the solution। Molarity को हम कैसे define करते हैं? Number of moles of solute dissolved per liter of the solution। Number of moles of solute can be calculated as number of given mass upon molar mass अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन अगर यही वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। नाउ वी हैव टू फ्रैक्शंस, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 upon volume in milliliter। So this is the expression to calculate the molarity of the solution। The third question is based on it। A solution is prepared by dissolving 4 gram sodium hydroxide to give 500 ml of it। 500 ml solution बनाना है 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व करके, तो बताइए उसकी मोलैरिटी क्या होगी। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग गिवन मास जो हमें गिवन है वो कितना है, 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन इट। व्हाट दिस कैपिटल M इज मोलर मास, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट व्हिच वी आर डिसॉल्विंग। द सोल्यूट व्हिच वी आर डिसॉल्विंग इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40, that is 23 plus 16 plus 1, it comes out to be 40 ग्राम into कितने ml सॉल्यूशन है, 500 ml। क्योंकि ml में है तो 1000 से डिवाइड टू कन्वर्ट इट टू लीटर। नाउ ऑन सॉल्विंग इट व्हाट डू वी गेट, 1/5 दैट इज 0.2 मोल। कैपिटल M इज द यूनिट फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो उसका सिंबल है दैट इज कैपिटल M। और इसका यूनिट अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो क्या होगा, मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स से मोल्स, क्योंकि पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है तो मोल्स पर लीटर इज द यूनिट फॉर मोलैरिटी, आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द सिंबल कैपिटल M। One more way in which the question can come, suppose a solution of 1 molarity is given to us। अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास 2 मोलर सॉल्यूशन बना हुआ है, how much volume of 2 molar solution is required to prepare 500 ml of 1 molar solution। मतलब हमारे पास 2 मोलर कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन बना है, हम उस 2 मोलर सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लें कि हमारे पास 1 मोलर मीन्स जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 1 मोलर हो और वो 500 ml बन जाए। So in that case we apply the formula M1V1 is equal to M2V2। M1V1 is equal to M2V2। क्वेश्चन है
कि 2 मोलैरिटी का कोई सॉल्यूशन है, इसका हम कितना वॉल्यूम यूज करें कि 1 मोलैरिटी का 500 ml सॉल्यूशन बन जाए। 2 मोलर सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लें 1 मोलैरिटी का 500 ml सॉल्यूशन बन जाए। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 इंटू 500 बाई 2 दैट इज 250 ml। इसका मतलब 2 मोलैरिटी का 250 ml सॉल्यूशन लेकर बाकी का उसमें वाटर डाल दें तो वो 500 ml सॉल्यूशन बन जाएगा जिसकी मोलैरिटी 1 मोलर होगी। सो द क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे ऑल्सो कि एक तरह के का सॉल्यूशन है उसका कितना मोलैरिटी, या हम इसका इतना वॉल्यूम ले रहे हैं और इतनी मोलैरिटी का इतना वॉल्यूम बना रहे हैं, तो वो पूछा जाएगा कि आपने कितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन लिया था। मींस इन वन वे और द अदर इन चारों में से कोई एक चीज आपको गिवन डेटा के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज मोलैरिटी। जैसे हमने मोलैरिटी में किया, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ मोलैरिटी इज it is defined as number of moles of solute dissolved per kg of the solvent. Molality is defined as number of moles of solute dissolved per kg of the solvent. अब जैसे उसमें हमने लिखा था number of moles is given mass upon molar mass. अब अगर यहाँ ये solvent in grams में होगा, dissolved per 1000 gram of solvent. So mass of solvent if in grams, तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा 1000 से। So we will get given mass upon molar mass into weight of solvent in grams, तो ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि ये वाली टर्म रेसिप्रोकल होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो। नाउ solving a question based on it, 2.82 gram of glucose is dissolved in 30 gram of water. According to the expression of molality, what do we need? Given mass of the solute, molar mass of the solute, given mass of the solvent into 1000 molality निकालने के लिए 2.82 ग्राम, मतलब गिवन मास क्या है 2.82 ग्राम। क्या चीज डिसॉल्व्ड है? ग्लूकोज। इसका मतलब मोलर मास किस चीज का आएगा? ग्लूकोज का। Formula of glucose is C6H12O6. So accordingly its molar mass will be 180 gram. 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6. This will come out to be 180 gram. So molar mass will be 180 gram into what is the mass of the solvent in which it is dissolved is 30 grams. So 30 gram, because it is in grams, so it will be multiplied by 1000. On solving it, इस सारे को solve करके the resultant will be 0.522 molar. जैसे मोलैरिटी के लिए कैपिटल M was the symbol, इसी तरह मोलैरिटी के लिए स्मॉल m is the symbol. This is the distinction between the two. अगर आपको स्मॉल m से लिखा हुआ है means it is 0.5 molar. Molar means number of moles dissolved per 1000 gram of solvent, and capital M means molarity. 0.5 molarity capital M means number of moles of solute dissolved per liter of the solution. अब जैसे हमने यहाँ मोलैरिटी निकाली, इसी तरह इस एक्सप्रेशन में अगर हमें मोलैरिटी गिवन होती दैट वी आर हैविंग 0.5 मोलर सॉल्यूशन, तब हम मोलैरिटी की जगह 0.5 डालते और अकॉर्डिंगली हमें मास ऑफ द सोल्यूट पूछा जा सकता था, वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा जा सकता था। सो वॉट एवर इज नॉट देयर अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा वी कैन फाइंड इट बाय इंट्रोड्यूसिंग द वैल्यूज इन द गिवन एक्सप्रेशन। कमिंग टू द लास्ट मेथड ऑफ expressing the concentration of the solution, that is mole fraction. Mole fraction is defined as the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of components present in the solution. Suppose we are having a solution with two components A and B. To express the symbol of mole fraction,
इट इज XA. X के साथ हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. XA मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A. जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. इसी तरह XB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. Mole fraction of B is equal to number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. Now also XA plus XB is equal to 1. टोटल जितनी भी मोल फ्रैक्शंस होती हैं उन सबका सम टोटल 1 के इक्वल होता है. अगर दो कंपोनेंट्स हैं हम एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो दूसरे का निकालने के लिए हम उसे 1 में से माइनस कर दें तो वील गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B. एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा B के लिए. इसे और ज्यादा एक्सपैंड करके सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सपोज वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन फॉर A. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A वी नो गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ A. WA अपॉन MA अपॉन NA की जगह क्या लिखेंगे WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB. दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB. इसको और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A अपॉन गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A प्लस गिवन मास अपॉन B अपॉन मोलर मास ऑफ B. नाउ सॉल्विंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं. अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज in 180 gram of water. Calculate the mole fraction of solute. Mole fraction of solute. Suppose we are supposing that A is the solute in the solution. अब A का mole fraction निकालना है. Formula is WA upon MA. WA क्या है? Given mass of solute. Given mass of solute is 34.2 gram upon molar mass of solute. What is the solute here? It is sucrose. The formula of sucrose is C12H22O11. So accordingly its molar mass is 342 gram. So molar mass of solute is 342 gram. Denominator में क्या है? Given mass and molar mass of solute means यही चीज again 34.2 upon 342 plus solvent का mass given mass upon molar mass. Given mass कितना है 180 ग्राम और मोलर मास कितना है 18 ग्राम. ऑन सॉल्विंग देम व्हाट डू वी गेट 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 10. ऑन सॉल्विंग इट, इस सारे को सॉल्व करके व्हाट डू वी गेट 0.0099 विच इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A. A मीन्स किसका? फॉर सोल्यूट. So this is the mole fraction of A. इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है. सो दोनों के यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. मोल फ्रैक्शन विल बी यूनिटलेस. हमने एक बार XA निकाल लिया. अब यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या था. अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी होता तो हम क्या करते XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. XB is equal to 1 minus XA means 1 minus 0.0099 करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती XB that is mole fraction of solvent also. ये हमने निकाली solute की, यहाँ से आ जाती solvent की. So these we have discussed the ways to express the concentration of solution कि हम अलग अलग तरह से किस तरह से solution की concentration को एक्सप्रेस करते हैं. उन्हें बनाने के लिए ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना सोल्यूट और कितना सॉल्वेंट चाहिए कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाने के लिए. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स बिकॉज द सॉल्यूशंस इन द लेबोरेटरी दे आर कैरिड आउट इन द सॉल्यूशन फॉर्म एंड वी शुड नो द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन
for which we are using it for to carry out the chemical reaction. Thank you.